Hello students, today will be discuss about the Jew story. आज का हमारा टॉपिक है द जू स्टोरी. ओके, थोड़ा सा जान लेते हैं. द जू स्टोरी was first performed at Berlin in Germany as a part of Double Bill with Samuel Beckett's Crab's Last Trap. ये जो जू स्टोरी है ये सर्वप्रथम सैमुअल बैकेट के नाटक क्रैप्स के लास्ट ट्रैप के साथ बर्लिन जर्मनी में दिखाया गया था. एल्विन रोट इट अ सडन burst of inspiration and enthusiasm and till his day it is regarded as Elvis' most successful and perfectly achieved play. Much of the power of the play derives from its simple structure and thrust. The play has not elaborated plot, but in it Elvis found a dramatic metaphor that could carry a heavy burden of emotions and intellectual suggestion without becoming a one-dimensional allegory or symbolic exercise. There are only two major characters in the play. They are Jerry and Peter. इसमें दो मेजर प्ले हैं जेरी और पीटर का. पीटर lives a settled life with a wife, two daughters. Okay. Packets and cats. Jerry feels isolated even in New York. The landlady and her dog may also be taken as minor characters. ये जो है एल्विन ने इस नाटक को प्रेरणा और जोश के साथ उत्पन्न हुए वेग के साथ लिख दिया था और आज तक ये उनका सबसे सफल नाटक माना जाता है. नाटक की अधिकतर शक्ति की सरल रचना और अचानक विस्फोट से ली गई है. नाटक में कोई विस्तृत प्लॉट नहीं है, परंतु इस नाटक में एल्विन ने इस नाटकीय रूपक पा लिया है और जिसके माध्यम से वह भावनाओं का भारी बोझ एवं बौद्धिक सुझाव बिना एक और हुए और बिना अनियोक्ति परक हुए व्यक्त कर सका है. नाटक में केवल दो मुख्य कलाकार हैं, पीटर एवं जेरी. पीटर सामान्य जीवन जीता है. उसके परिवार में पत्नी, दो पुत्रियां, छोटे तोते एवं दो बिल्लियां हैं. जब जेरी न्यूयॉर्क जैसे महान नगर में भी स्वयं को अकेला अनुभव करता है. गृह स्वामी और उसके कुत्ते को भी दो छोटे कलाकारों के रूप में लिया जा सकता है. ओके. The play The Jew Story is set in the Central Park. Two benches are shown lying on either side of the stage. Both the benches face the audience on the back of the stage. May be seen green foliage and trees. It is a Sunday afternoon in summer. As the curtain goes up, Peter is seen sitting on a bench. He is a man in his early 40s. He is neither fat nor very lean and thin, neither handsome nor simple. He wears clothes made of tweeds, smokes a pipe and wears glasses. Although he is a middle-aged man, but he looks younger to this age. Jerry is a man in his late 30s. His clothes are not cheap and poor. They show his carelessness towards his clothes. Once his body must have been trim and muscular, but now he has begun to put on flesh. Now he is not handsome, but it is evident that he must have been a handsome man. His fall from physical grace should not suggest. देखिए, जो जेरी है वो 37-38 साल का व्यक्ति है. उसके वस्त्र भद्दे सस्ते तो नहीं, परंतु वस्त्रों के प्रति उसकी लापरवाही को दर्शाते हैं. कभी उसका शरीर स्मार्ट और मस्कुलर रहा होगा, परंतु अब मोटा होना आरंभ हो गया है. वह सुंदर नहीं है, परंतु ये स्पष्ट है कि वह सुंदर रहा होगा. उसके शारीरिक सौंदर्य में गिरावट से ये नहीं समझा जाना चाहिए कि वह विचार में लिप्त रहा है. ओके. Peter is reading book sitting on a bench. He has come over there for 4 years on every Sunday. He sits on this bench and reads his book. Jerry entered the stage.
He wants to begin to talk with Peter. He comes to Peter and says to him that he has been to the zoo, but Peter pays no attention to him and keeps on reading this book. Jerry repeats his words that he has been to the zoo several times. Then Peter gets startled and asks him, "What? I am sorry, where are you talking to me?" Jerry again says that he has been to the zoo. Having talked about the awareness for some time, he asks Peter if he would mind if he talks to him. Actually, Peter does not want to talk to him. He is interested in reading his book, but on Jerry's repeated insistence, he becomes ready to talk to him. पीटर है, पीटर का अपना परिवार है, उसकी पत्नी, 2 पुत्रियाँ, उसके पास 2 बिल्लियाँ हैं, 2 छोटे तोते भी हैं। ओके, वह एक सामान्य नागरिक है, सामान्य जीवन व्यतीत करता है। During this conversation, Peter tries to get rid of Jerry several times. But Jerry does not let him go. He tells Peter that he would like to tell him about the zoo and what happened there at the zoo, while move on and punches at Peter's arm. Ultimately, Jerry forces Peter to Peter's bench. Jerry tells him that the bench belongs to him. He should go and sit on another bench. Peter is not ready to leave this bench. Jerry challenges him, saying that the bench is associated with the owner. He should fight him for the position of the bench. देखिए इसमें क्या होता है, एक डॉग है जो कि जेरी को देखकर हमेशा भौंकता रहता है। जेरी सोचता है कि किसी भी तरीके से इस डॉगी से मित्रता की जाए, तो उसके लिए तरह तरह की चीज़ें खाने के लिए लाता है और इस तरीके से कुत्ते के उसमें बिहेव में कोई परिवर्तन नहीं आता तो उसको मारने की योजना बनाता है। इस तरीके से वो चूहे मारने का विष उसको खिला देता है, लेकिन कुत्ता तो मरता नहीं है बल्कि बीमार पड़ जाता है। जो उसकी स्वामिनी होती है महिला, वो कुत्ते की बीमारी से वो चिंतित हो जाती है और जेरी से उसके स्वस्थ हो जाने की प्रार्थना करने को कहती है। कुछ दिन में कुत्ता भी ठीक हो जाता है, परंतु अब वो जेरी को केवल घूरता है और उसको भौंकता नहीं है। जेरी अत्यधिक अकेलापन अनुभव करता है कि कुत्ता भी उससे ना तो मित्रता करना चाहता और ना ही शत्रुता। जेरी अपने विषय में बताता है कि उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है और उसकी किसी भी महिला से मित्रता नहीं है, कोई भी महिला उससे मित्रता करना नहीं चाहती। इस तरीके से पीटर कई बार जेरी से पिन छुड़ाने का प्रयास करता है, परंतु जेरी उसे नहीं जाने देता। उसको चिड़ियाघर के विषय में बताने को कहता है कि वहाँ क्या घटित हुआ था। वार्ता करते हुए जेरी पीटर की बेंच पर बैठ जाता है और उसको बार बार उसकी बाह में बार बार मारकर उसको अपमानजनक बातें कहकर उसे अत्यधिक उत्तेजित करता है और उसकी बेंच पर कब्जा करने के लिए कहता है। वह बेंच उसकी है तथा किसी अन्य बेंच पर जाकर बैठ जाए। पीटर इसके लिए तैयार नहीं होता। जेरी उसे चुनौती देता है, यदि बेंच उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है तो उससे लड़कों से प्राप्त कर ले। जेरी को इतना ज़्यादा भड़काता है कि पीटर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तभी जेरी अपनी जेब से एक चाकू निकाल लेता है। पीटर घबरा जाता है और थोड़ा पीछे हटता है। जेरी उसे उत्तेजित कर देता है और उससे पूर्व कि पीटर को समझ सके, जेरी चाकू को उसके पैरों के समीप गिरा देता है, जिससे पीटर उसको तुरंत उठा लेता है चाकू को। ओके, और दृढ़ता से अपने हाथ में पकड़ लेता है, हाथ को अपना शरीर से थोड़ा दूर रखता है। तभी अवसर पाकर जेरी तीव्रता से पीटर की ओर दौड़ता हुआ आता है, स्वयं को चाकू के ऊपर गिरा देता है। चाकू उसके शरीर में घुस जाता है। पीटर घबरा जाता है और बार बार ईश्वर से कहता है कि ईश्वर। जेरी पृथ्वी पर गिर जाता था तो पीटर को धन्यवाद देता है, कहता है कि यही उसकी योजना थी। वह अपने एकांत जीवन से तंग है। वह पीटर से प्रार्थना करता है कि वो वहाँ से भाग जाए और फिर कभी लौट कर ना आए। उसने पीटर को उसकी बेंच से बेदखल कर दिया है। पीटर वहाँ से भागता है। जेरी अत्यंत पीड़ा में अपनी जेब से रूमाल निकालता है तथा चाकू पर से पीटर की उंगलियों के निशान मिटा देता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो मर जाता है। ओके, he requests Peter to flee from the scenes quickly. He asked him never to return there. Now he has
possessed him of this bench. Peter flees him from there in great pain. Jerry takes out a handkerchief from his pocket and wipes out Peter's finger. Prudent from the knife, his eyes are closed. He is dead. ओके तो ये जो स्टोरी है वो पीटर और जेरी के ऊपर है। मेजर कैरेक्टर्स हैं दोनों ही। पीटर लिव्स ए सेटल्ड लाइफ विद अ वाइफ। पीटर अपनी वाइफ के साथ रहता है, उसकी 2 डॉटर्स भी हैं, बिल्ली भी है उसके पास। लेकिन जेरी बहुत ही अकेलापन महसूस करता है। वो अपने अकेलेपन से बहुत ज़्यादा उब जाता है क्योंकि कोई उससे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता, ना ही कोई उससे बोलना चाहता है। और वो एक योजना बनाता है कि जेरी जो है पीटर से लड़ने की एक योजना बनाता है। लास्ट में चाकू गिरा देता है। पीटर अपने आप को बचाने के लिए उस चाकू को उठा लेता है। जेरी उस चाकू पर अपने आप को गिरा देता है, जिससे क्या होता है उसकी डेथ हो जाती है। और मरने से पहले वो उसको बोलता है पीटर को कि वो भाग जाए वहाँ से किसी भी तरीके से, और उसके जो चाकू पर उंगलियों के निशान होते हैं उसको वो मिटा देता है। और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो अपने अकेलेपन से बहुत ज़्यादा उब चुका होता है, बहुत परेशान हो चुका होता है। इस तरीके से वो ये कदम उठाता है। The story was first performed at Berlin, Germany as a part of Double Bill with a Samuel Beckett's Scraps Last Trap. The play has not elaborated plot, but it in Elvie found a dramatic metaphor that could carry a heavy burden of emotions and intellectual suggestion without becoming a man-dimensional allegory or symbolic exercise. Okay. On the back of the stage may be seen green foliage and trees. It is a Sunday afternoon in summer. He is a man in early 40s. He is neither fat nor very lean and thin.